Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, in our last class we have started this chapter, that is Windows, and we have done a lot of things in this chapter like maximizing, minimizing window, reading about close button, and yeah, program windows. है ना? We have done all these things. In our last class, where we have stopped is moving a window, I guess. Moving a window and resizing a window also. Moving a window and resizing a window. So today we will start with a revision of these things, that is moving a window and resizing a window, and then we can move ahead with our chapter. Now the things arise that how can we move a window. So for that, first of all we have to open a window, है ना? For that what we have to do, first of all we have to open a window. Let us see how we can move a window. So what we will do, we will go on start button, and then we will go on, after going on start button we will go on search option, and there search option we can open our desired window. Whatever the window we want to open, we can open from there. Okay, let us see. Moving a window. The window can be shifted, moved to a different location if it covers item on your screen. So I have explained you, suppose let me open a window. I'll go on search option, and there in search option, let me see. Okay, I'll open paint this time. है ना? See, I have opened paint, and see paint ने क्या किया, पूरी screen को, this paint has covered all the screen, all the space. So now I can't see anything. What I have to read, मुझे क्या read करना है वो मुझे दिख ही नहीं रहा है ना? What can be done for this problem? For this problem we can move our window. What we can do, we can move our window, है ना? Move कर सकते हैं हम window को. Let us see how we gonna move our window. Okay, we can move our window by putting our mouse pointer here at the title bar. Title bar के पास हमने क्या किया, अपने mouse pointer को रखा और वहां पे double tap करके देखो, like this we can move our window. Suppose I have to teach you this point. Point number 1, point number 2, point number 3. How I can do that? I can do that by moving the cursor, है ना? कर्सर को मूव करके I can do that. तो ये हम पहले हम इसने हमारा पूरा स्क्रीन कवर किया हुआ था, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको मूव कर दिया, फिर हमने क्या किया, इसको देखो इस तरह से मूव किया, है ना? हमने इसको मूव किया. मूव करने से क्या हुआ, जो पॉइंट मुझे आपको पढ़ाना था वो मुझे बिल्कुल साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है. Okay, next thing is resizing a window. Next thing is resizing a window. How can I resize a window? You can change the size of the window displayed on your screen. We can change the size of the window that is being displayed there on our screen. This also we have done in our last class. We can do the resizing by clicking the double-headed pointer. Double-headed mouse pointer means mouse pointer with double-headed. देखो, जो mouse pointer both the side open हो, arrowed हो, उसे हम क्या बोलते हैं, double-headed mouse pointer. So with the help of double-headed mouse pointer, we can move a window. Window को हम क्या कर सकते हैं, हम window को move कर सकते हैं. Okay, let us see. तो हाउ वी कैन रिसाइज, चलो रिसाइज भी करके देखें. यहाँ मैंने क्या किया, अपने विंडो को मैं ऊपर ले आई ड्रैग करके. अब मुझे क्या करना है, इसको आई वॉन्ट टू रिसाइज इट. अब मुझे इसको क्या करना है, आई वॉन्ट कि ये भाई ये पूरा ये
विंडो क्या हो जाए, रिसाइज हो जाए। मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये माउस पॉइंटर इसके एज पे मैं लेके गई, देखो कॉर्नर पे ले जाने पे देखो यहाँ पे ये बन गया ना, डबल हेडेड पॉइंटर बना ना यहाँ पे। नाउ जब वो डबल हेडेड पॉइंटर बन गया तो उस पर डबल टैप करके सी उसको ड्रैग कर सकते हैं, उसके डबल पॉइंट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं, है ना। अब हमने क्या किया, और पॉइंट को रिलीज कर देंगे। देन हमें उसको इस साइड से भी बड़ा करना है। चलो, देखा, हो रहा है ना, देखो, नाइस ना। अब देखो हमने क्या किया, रिसाइज करने के लिए इसको एकदम छोटा सा कर दिया। जितना बड़ा हमारा जितना बड़ा हमारी बुक की पिक्चर है, हमने उसको एग्जैक्टली उतने बड़े साइज का कर दिया ना हमने। सी, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लाइक दिस वी कैन रिसाइज अवर विंडोज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम विंडो को क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, है ना। वी कैन डू द रिसाइजिंग ऑफ द थिंग्स, है ना। देखो छोटे विंडो पे भी वी कैन वर्क, छोटे से विंडो पे भी हम क्या कर सकते हैं, छोटे विंडो पे भी हम वर्क कर सकते हैं। ओके, now let us move ahead, let us see what is the next point that we have to read. Next point that we have to read is switch between windows. Next point जो हमें पढ़ना है वो क्या है, switch between windows. Now if you have more than one window, now if you have more than one windows open on your screen, you can easily switch between the window. We can what we can do, we can easily switch between the window को हम क्या कर सकते हैं, we can easily switch between the windows. You can switch between one program to another by using the taskbar. We can switch between one program to another by using the taskbar. Taskbar का use करके we can switch between the window. Now let us see switch between the window. That means टास्क बार पे हमारे दोनों विंडोज ओपन होंगे, दो या मोर देन टू विंडोज इस तरह करके ओपन होंगे, और हमें क्या करना है, हमें उन्हें स्विच करना है। स्विच मतलब पहले इस विंडो पे, देन इस विंडो पे, देन इस विंडो पे, है ना। ओके, लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट। You can work only in one window at a time. That's true. हम एक टाइम पे एक ही विंडो पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। एट अ टाइम वी कैन ओनली वर्क, एक ही विंडो पे वर्क हम कर सकते हैं एक टाइम पे। नाउ द एक्टिव विंडो appears in front of all other window. Active window appears in front of all other windows and display the dark title. This also I have done in the last class. ठीक है, देखो यहाँ पे टास्क बार में I'm having two windows open. One is a document window. See, this is a doc window, है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट विंडो ओपन कर लिया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ओपन अ पेंट विंडो। अब देखो मैंने क्या किया, दो विंडो ओपन कर लिया, है ना। देखो दोनों में डिफरेंस कैसे हम समझेंगे, अब दोनों पे हम एक साथ तो वर्क कर नहीं सकते, है ना। हमारी एक्टिव विंडो, जैसे अब हमें यहाँ पे पेंट विंडो में आई हैव टू ड्रॉ समथिंग, है ना। पेंट विंडो में हमें क्या करना है, कुछ तो ड्रॉ करना है। लेट अस सी, सपोज आई हैव टू ड्रॉ, यस, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं वर्ड पे भी कुछ लिखूं, तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैंने वर्ड पे टैप किया, क्या हुआ, वर्ड पे टैप करते ही ये पेंट विंडो क्या हुआ, ये बैक साइड चला गया, है ना। चलो अब फिर से देखते हैं, वर्ड पे टाइप करके देखते हैं। देखो जब मैं वर्ड पे कुछ टाइप कर रही हूँ, सपोज मुझे इस कलर का अम, इस इस क्वेश्चन का मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका कलर चेंज किया, ठीक है, मैंने इसको येलो कर दिया।
ओके, तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, मैम ने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसकी जिस विंडो पे हम वर्क करते हैं वो विंडो क्या कहलाती है, वो विंडो कहलाती है हमारी एक्टिव विंडो। अब मुझे इसका कलर फिर से, इस टेक्स्ट का कलर मुझे फिर से चेंज कर, या तो मुझे इसको इटैलिक करना है या मुझे इसको बोल्ड करना है और फिर इसको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अब दिस इज व्हाट, दिस वर्ड पैड इज व्हाट, दिस वर्ड पैड इज एक्टिव विंडो। ये कौन सी विंडो है, ये एक्टिव विंडो है। अब मैं इस पे गई, ठीक है। अब मुझे पेंट पे क्या काम था, पेंट में भी मुझे कुछ शेप्स ड्रॉ करने थे। ठीक है, कुछ शेप ड्रॉ करके मुझे उसमें कलर फिल करना था। चलो चलो, मुझे क्या करना था, कलर फिल करना था। मैम ने क्या किया, देखो इसके अंदर क्या किया, कलर फिल कर दिया, और ये सारे किस कलर के हो गए, ब्लैक कलर के हो गए। ठीक है, ओके नाउ, तो इस तरह से वी कैन स्विच बिटवीन द विंडो, लाइक दिस वी कैन स्विच बिटवीन द विंडो जस्ट बाय टैपिंग देम। चलो, now let us see what is written here. Do you know, you can also display the apps in front of all running app by clicking anywhere inside the app. Okay, now next is show desktop using arrow pick. Show desktop using arrow pick, arrow pick। ठीक है, तो व्हाट वर्क डज शो डेस्कटॉप डन, शो डेस्कटॉप से क्या होता है, ये सारा शो डेस्कटॉप से सारे विंडोज क्लोज हो जाएंगे और हमें क्या दिखेगा, हमें सिर्फ हमारा डेस्कटॉप नजर आएगा, हमें सिर्फ हमारा डेस्कटॉप उस पर नजर आएगा। लेट अस रीड, शो डेस्कटॉप यूजिंग एरो पिक। In the far right corner of the taskbar, there is a arrow pick button. You can instantly minimize all your open windows. सारे open window को हम तुरंत minimize कर सकते हैं। To remove them from your screen and view the desktop clearly. और desktop को हम कैसे देख सकते हैं? Very clearly we can see the desktop. It is also called show desktop. इसको हम क्या कहते हैं? We call it show desktop। इसको हम show desktop भी कहते हैं। Okay, so what is the step? Take your mouse pointer to the show desktop button। सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर को शो डेस्कटॉप बटन पे लेके जाने को है। ठीक है, अच्छा सी, इन विंडोज 10 वी डोंट गेट दिस ऑप्शन लाइक शो डेस्कटॉप। यहाँ पे हमें साइड में शो डेस्कटॉप तो नहीं मिल रहा, यहाँ पे सी हमें शो डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा है क्या, नो। टैबलेट मोड, लोकेशन, नो। हमारे पास यहाँ पे शो डेस्कटॉप का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, विंडोज 10 में वी डोंट गेट शो डेस्कटॉप बटन। When you hover the mouse pointer on the show desktop button, अब विंडोज 7 में क्या था, आपको शो डेस्कटॉप का ऑप्शन आता था, तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते थे, वहां पे अगर आप जाके अपने माउस पॉइंटर को उस पर क्लिक करोगे तो व्हाट विल हैपन, वहां पे जाके माउस पॉइंटर पे क्लिक करने से सारे, देखो यहाँ पे देखो क्या शो किया है, इधर ये दे आर शोइंग कि देखो पूरे ढेर सारे विंडोज ओपन है, सारे विंडोज ओपन है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर भी ओपन है, पेंट भी ओपन है, ढेर सारे विंडो ओपन है। नाउ शो डेस्कटॉप बटन पे क्या हुआ, शो डेस्कटॉप पे प्रेस करते ही खाली हमें डेस्कटॉप दिख रहा है, बाकी सारे बटन क्या हुए, ऑल द विंडोज बिकम ट्रांसपेरेंट। ईच विंडो मिनिमाइजेस टू अ आइकन ऑन द टास्क बार। टास्क बार में सारे विंडोज क्या बन गए, आइकन्स बन गए। यू कैन नाउ क्लियरली व्यू द डेस्कटॉप। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ वी कैन क्लियरली व्यू द
Desktop. If you want to re-display all window, click on show desktop button again. To display only one window, click its icon on the text bar. Closing a window. Now what next? Next is closing a window. How we can close a window, है ना? विंडोज को क्लोज हम कैसे करें? वेरी इजी मेथड टू क्लोज अ विंडो. चलो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू ओपन द विंडो फर्स्ट, है ना? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द विंडो. You can close the window to remove it from your screen after finishing work with that window. Click on close button in the window or you can press the alt plus F4 key. अब ये शॉर्टकट सारे बच्चे याद रखेंगे. alt plus F4 की सारे बच्चे याद रखेंगे. तो हम विंडो को कैसे क्लोज कर सकते हैं? यहाँ पे जो क्रॉस बटन है उस पर प्रेस करके या alt प्लस F4. चलो करके देखें. अब ये विंडो मैंने ओपन कर लिया. अब मैम को क्या करना है? इसको क्लोज करना है. तो मैम क्या करेंगे? आपके डेस्कटॉप पे, आपके कीबोर्ड पे देखो X, जहाँ पे लेटर X होता है उस लेटर के नीचे अल्ट बटन होता है. अल्ट प्लस F4 हमें करना था. ठीक है, अल्ट प्रेस किया और F4 किया. तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डू यू वांट टू सेव चेंज टू द डॉक्यूमेंट? सो नाउ आई डोंट वांट टू सेव. ऐसा किया तो देखो क्या हुआ, मेरा वर्ड पैड वाली विंडो क्या हुई? बंद हो गई. तो अल्ट प्लस F4 से वी कैन व्हाट वी कैन डू? वी कैन क्लोज अ विंडो विद द हेल्प ऑफ अल्ट प्लस F4. आई कैन easily close a window. Okay. Now, the next is after the Alt plus 4, I am having Paint button. चलो पेंट को ओपन करते हैं, पेंट को बड़ा कर लेते हैं. ठीक है, अब इस पेंट को तो हमने खूब बड़ा सा कर लिया. ठीक है, इस पे फिल कलर करके इसको गंदा सा कलर भी कर दिया. तब ये इतना गंदा हो गया दैट आई वांट टू क्लोज इट. तो अभी देखो पिछले वाले प्रोग्राम को वी हैव क्लोज बाय यूजिंग अल्ट प्लस F4. नाउ दिस प्रोग्राम we will close by clicking on this cross button. We will click on this cross button. Cross button means close button पे हम click करेंगे. Again it will ask, do you want to save change? No, don't save change. चलो एक बार मैम और दिखाएं. चलो मैम एक दूसरा ऑन करके देखा. लेट अस आई एम गोइंग टू ऑन कैलकुलेटर. अब यहाँ पे कैलकुलेटर दिख रहा है सबको? स्क्रीन पे कैलकुलेटर सबको दिख रहा है? लेट अस कैलकुलेट समथिंग. ये हमने कैलकुलेट कर लिया. वी हैव गॉट 2003, है ना? सी, different type of calculator are given there. Standard, scientific, programmer, date calculation. Let us see here we can calculate the date also. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना टाइम बीता. तो वी विल यूज स्टैंडर्ड कैलकुलेटर. ठीक है, हमने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर. अब हमारा काम हो गया. व्हाट वी विल डू? अच्छा देखते हैं इसको भी क्या हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं. यस, हम इसे भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू? अब इसे हम क्या करेंगे? अल्ट प्लस F4. अल्ट प्लस F4 से हम क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे. देखो हमारा कैलकुलेटर क्या हुआ? क्लोज हो गया. क्लोज. ओके, सो हियर वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द चैप्टर. अब तक हमने काफी सारी चीजें विंडोज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी अब इस चैप्टर में, है ना? नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी, जो अगली टॉपिक हमें पढ़नी है वो क्या है? शटिंग डाउन द विंडो. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी शटिंग डाउन द विंडो एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन. ओके,
So the next topic that we have to study is shutting down Windows 7. अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है shutting down Windows 7. Now how we can shut down Windows 7? Windows 7 को हम shut down कैसे करेंगे? अच्छा बाबा, ये मैम करके नहीं दिखाएंगे, ये मैम करके दिखाएंगे तो मैम का सिस्टम ऑफ हो जाएगा, मैम पढ़ाएंगे कैसे आपको? Let us read it. Once you have finished your work, you need to shut down your computer. अब जैसे फ्रिज से पानी ले लिया तो फ्रिज को बंद करना जरूरी होता है ना, फ्रिज को ऑन तो नहीं ना छोड़ सकते बेटा। फ्रिज से पानी ले लिया आपने तो अब आपको क्या करना होगा, फ्रिज को बंद करना होगा। Now to close the fridge, what you have to do, you have to shut it down. shut करना होगा, है ना। Similarly in computers also, जब आपने कंप्यूटर पे वर्क कर लिया तो क्या करना होगा आपने, अब आपको कंप्यूटर को ऑफ करना होगा। यू हैव टू स्विच इट ऑफ, आपको कंप्यूटर को ऑफ कर देना होगा, ठीक है। तो कैसे ऑफ करेंगे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। द स्टार्ट मेनू विल अपीयर, क्लिक ऑन द शटडाउन, शटडाउन पे क्लिक करिए। विंडोज शटडाउन एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर, विंडो क्या हो जाएगा, विंडोज शटडाउन हो जाएगा और कंप्यूटर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। अच्छा, तो मैम ने बताया कि मैम शट डाउन नहीं करेंगे, लेकिन मैम आपको ये दिखा देंगे कि शट डाउन होता किधर है। अब देखो हम यहाँ पे स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखो पावर ऑप्शन में, पावर ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है ना। तो शट डाउन से क्या होगा, क्लोजेस ऑल द ऐप एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर। हमें नहीं करना, इसलिए मैम ये आपको करके नहीं दिखाएंगे। तो बेटा हियर वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, अब ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया विंडोज। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। We will start with self-evaluation. We will start with self-evaluation. I know that Windows 7 is an operating system developed by Microsoft. Is it true? I know that Windows 7 is an operating system developed by Microsoft. So, agree. Next is, I know that the most useful part of the desktop is the start button. हाँ, बिकॉज स्टार्ट बटन पे ही जाके वी कैन गेट ऑल द प्रोग्राम्स, है ना। देखो स्टार्ट बटन पे ही जाके हम सारे प्रोग्राम्स हमको स्टार्ट बटन पे जाके ही मिलते हैं ना बेटा। सी ऑल द प्रोग्राम्स वी कैन गेट हियर ओनली। So agree. Next is, I know that start menu is used to access program and computer setting. Again it is true. Next is, I know that every icon on the desktop represents different program. हाँ करेक्ट, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सारे प्रोग्राम, सारे जितने भी आइकन्स होते हैं वो क्या डिस्प्ले करते हैं, दे डिस्प्ले द डिफरेंट प्रोग्राम। वो क्या डिस्प्ले करते हैं, दे डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। तो यस करेक्ट। नेक्स्ट इज, आई नो दैट द booting is the process of starting, booting is the process of starting and restarting a computer। तो अब से जब भी हम देखेंगे कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है या रीस्टार्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट कंप्यूटर इज booting। Next is, I know that the long bar at the bottom of the desktop is called taskbar. I know that long bar at the bottom of the desktop is called taskbar। देखो ये जो long bar है इसको हम क्या कहते हैं, we call it, देखो task view, so we call this
टास्क बार, हम इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट टास्क बार. सो इट इज ट्रू अगेन. Now, next statement is, I know that a rectangular area surrounded by a frame is called program window. Correct? है ना? Okay. Now we have to move toward the exercise question. अब हम क्या करने वाले हैं? We are going to do some exercise question. So what in this? Take the correct answer. Read the first question. Come on. Read it yourself. Read the first question. First question says, an operating system developed by Microsoft Corporation is Windows, Ubuntu या Mac OS. Tell me. Recall it and tell me. Tell me the answer. An operating system developed by Microsoft Corporation is Windows, Ubuntu या Mac OS. So the answer is Windows. है ना? Windows is an operating system that is developed by Microsoft. Next is, the long bar at the bottom of the desktop is, long bar at the bottom of the desktop is taskbar. Taskbar कहते हैं ना? And title bar, we get title bar here at the top. टॉप में जो होता है, जहाँ पे टाइटल लिखी रहती है प्रोग्राम की, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार. Next is a menu that provides quick access to all software. एक ऐसा मेनू जहाँ पे हम जल्दी से किसी भी प्रोग्राम पे पहुंच सकते हैं. स्टार्ट, फाइल या नेटवर्क. So our answer is start. है ना? Next thing that we have to read is, the process of starting or restarting a computer is called, the process of starting and restarting a computer is called, we call it turn on or starter. Do we call it by these names, turn on and starter? No, we call them booting. हम उसे क्या बोलते हैं? We call them booting. Okay, let us move ahead. Next is fill in the blanks. So, a dash is a rectangular area surrounded by a frame. Dash is a rectangular area surrounded by a frame. So, which is a rectangular area? We have just read here, na? कहाँ पढ़ा था हमने? We have read somewhere here. Program window. A program window is a rectangular area surrounded by a frame. Next statement is, on the left corner of the taskbar there is a start button. Dash menu provides quick access to all the software program. Which? Start menu. Okay. Any icon is opened by double click of a mouse or pointer of a mouse. Dash display a button for each opened window on your screen. Dash display a button for each open window on your screen. टास्क बार, देखो टास्क बार में होते हैं ना डिफरेंट विंडोज जो भी हमने ओपन किए हुए हैं. The process of starting and restarting your computer is known as booting. So kids, today we have completed up to here. Today we have completed up to fill in the blanks. In our next class, we will move ahead with this exercise.